Hello friends, good evening. Today I am talking about scope of homeopathic medicine in psychiatric diseases. Homeopathy is mainly based on mental symptoms, physical symptoms, modalities and concomitants. जब भी आप कोई मेडिसिन सिलेक्शन करते हैं कोई भी कंडीशन में, तब आपको मेंटल सिम्टम्स का बहुत जरूरत होता है, फिजिकल सिम्टम्स का जरूरत होता है और कॉन्कोमिटेंट्स और मॉडलिटीज का जरूरत होता है। तो ये जो मेंटल सिम्टम्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है एक पेशेंट के लिए, एक फिजिशियन के लिए। उसके बेसिस पे कोई भी पेशेंट को मेडिसिन सिलेक्शन करना है, उसके बेसिस पे ही मेडिसिन सिलेक्शन करना होता है। तो जब भी कोई साइकेट्रिक कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई नॉर्मल पेशेंट हो या कोई साइकेट्रिक पेशेंट हो, तब आपको अच्छा नॉलेज साइकेट्री का होना चाहिए, तभी आप अच्छा से केस टेकिंग कर पाइएगा और उनका सारा सिम्टम्स को कलेक्ट कर सकते हैं। Unless you have good knowledge in psychiatry, you cannot collect all the symptoms of the patient very nicely. You have to build a bond between yourself and the patient so that you can collect the mental symptoms of the patient, which are very unique characteristic symptoms and which lead to the selection of particular homeopathic medicines. So let us start. Scope of mental symptoms इन ट्रीटमेंट ऑफ नॉन साइकेट्रिक डिजीजेस। क्या स्कोप है, क्यों हमको जरूरत है साइकेट्री का नॉलेज का, क्यों हमें मेंटल सिम्टम्स को पढ़ना चाहिए या मेंटल सिम्टम्स के बारे में जानना है नॉन साइकेट्रिक डिजीज। एक पेशेंट मेरे पास आया, शी वाज सफरिंग फ्रॉम सोरियाटिक आर्थराइटिस। उनका पूरा शरीर में, शी वाज सफरिंग फ्रॉम सोरियाटिक आर्थराइटिस, देयर वाज इरप्शंस ऑल ओवर हर बॉडी. At the same time, there was great pain in her limbs. On the basis of totality of symptoms, natrum mur was selected. The mental symptoms were given preference in this selection. Mental symptoms को preference दिया गया. She told that she is suffering from psoriatic arthritis from last 3 years and she is being treated by most eminent doctors from Calcutta. On close questioning, I learned from her that her husband died at an early age due to cancer. And other symptoms I collected. On the basis, I formed a totality, mainly on mental symptoms, and I prescribed natrum mur in high potency. And there was a good result, and the patient is all right now. There is another case. The patient was suffering from high sugar and also profuse menstruation. The patient came to me with her husband. When I cross-questioned the patient and her husband, I have prescribed many medicines, for example, Hemamilis and other medicines, but it didn't work. On cross-questioning her husband told that she has many mental symptoms. उनके हस्बैंड को जब मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया तो उन्होंने बहुत सारा मेंटल सिम्टम्स, पहला बात वो पेशेंट के बारे में बताया जो बहुत सस्पिशियस है। जब भी वो कभी देर हो जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है, जो उनके वो बोलती है जो आप किसी और के साथ कहीं घूम रहे थे, कोई और लेडीज के साथ आप घूम रहे थे। तो ये सब सिम्टम्स था, बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी, जेलसी बहुत ज्यादा था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑल दिस सिम्टम्स, Lachesis was prescribed and Lachesis proved to be very beneficial to the patient. Now let me start. Another medicine which could be very beneficial in these cases, of dysmenorrhea and all those, that is Platinum metallicum. But for selection of Platinum metallicum also, you have to learn the mental symptoms very well. आपको मेंटल सिम्टम्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। आपको जानना होगा जो पेशेंट क्या आपसे कहना चाहता है। पेशेंट जब आके आपके चेंबर में बैठेंगे, उसका हाव भाव को आप ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ फ्रीली आप बातें कीजिए, ऐसा लगे जो आप उनसे गप कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली आप उसका मेंटल को स्टडी कीजिए। जब आप अच्छा से उनका मेंटल को स्टडी कीजिएगा तभी आप एक अच्छा
काट दीजिए। जब भी आप पेशेंट को स्टडी कीजिए, जब भी आप कोई मेडिसिन को सिलेक्शन कीजिए, तो अच्छा से उसका सारा सिम्टम्स को स्टडी कीजिए, स्पेशली मेंटल सिम्टम्स को कलेक्ट कीजिए जब पेशेंट आपके सामने बैठ रहे हैं। हाँ? Sorry for interruption due to some issues. There was connection issues, so I cannot. Sorry for interruption. Whenever a patient, yes, काटो ना, please. There were some phone calls, urgent phone calls, which I have to attend. Very sorry for interruption. So whenever a patient comes and sits in your chamber, you have to talk to him very freely. And in that course of time, you have to collect the mental symptoms very intelligently. You have to talk to him just like a friend, and you have to collect these symptoms. Today, a patient came. By his posture and by his way he was sitting and telling all those, I immediately collected this symptom that he was very dictatorial. Then he told, I asked him, I cross-questioned him. Then he told me, yes, I am a manager in Bank of Baroda, and I have to be dictatorial, because if I don't be dictatorial and domineering, then my co-workers will not work properly. My juniors will not listen to me. So I am dictatorial. I collected this particular rubric and I prescribed on that particular rubric. So for understanding for understanding homeopathy, you have to collect the mental symptoms very nicely. Now let us start some other topics. So today I am going to start about depression. Depression, you will find large number of medicines in homeopathic books. One of the medicine is Aurum Metallicum. So we have to tell what is Aurum Metallicum. When you go through the books like Philip Bailey or books of George Vitolkas and other books like Robin Murphy and all, then you will find the very picture of Philip Bailey. You have to read all the masters, modern masters as well as old masters. In this particular, you will see the development of psychopathology, how Aurum patient is, how Aurum symptoms are coming up, or how there is development of a Aurum patient. You will find that Aurum as a child, you will find that his parents are very much domineering, and also they always put pressure on that particular child. Whenever the child performs good at school, then he will be rewarded, and if the child performs, if there is a bad performance in school, in exams and all, he will be punished, he will be abused. बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अपने बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उनको दूसरे बच्चे लोगों से कंपेयर करते हैं, और उनको ये इच्छा रहता है जो मेरा बच्चा फर्स्ट है, यदि फर्स्ट आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं फर्स्ट आता है तो फिर उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, डांटते हैं। तो इस तरह से उनके अंदर में एक तैयार होने लगता है साइकोपैथोलॉजी, जो कि बाद में जाके ऑरम मेटालिकम को इंडिकेट करता है। तो आपको चाइल्डहुड हिस्ट्री का बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई पेशेंट को आप ट्रीटमेंट करने लगिए, तो यू हैव टू कलेक्ट द सिम्टम्स ऑफ चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में पेशेंट कैसा था, उसका ब्रॉन एंड ब्रॉटअप कैसा था, सारा चीज आपको जानना होगा। रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स कैसा था। जनरली चाइल्डहुड में जो बच्चे होते हैं उनको अनकंडीशनल लव मिलना चाहिए, पर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे लोग को महंगा गिफ्ट या तोहफा जब बच्चे फर्स्ट आते हैं तब देते हैं, पर यदि बच्चा खराब करता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसको बहुत ज्यादा दबाते हैं, मारपीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर एक
फीलिंग आता है, एक अंदर में उनको गिल्ट, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर गुस्सा होता है जिसको सप्रेस करता है। बाद में जाके वो ऑरम मेटालिकम का केस बड़ा होके भी उसके अंदर ये चीज रह जाता है, सप्रेशन का रहता है, जो अपना ग्रीफ को, अपना दुख को अंदर ही अंदर छुपाता है। और कभी ऐसा हुआ जो कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या कुछ हो गया, उसके बाद पेशेंट बोलता है जो हमको सुइसाइड करने का इच्छा होता है और सुइसाइड कर लेता है। डॉक्टर फिलिप बेली बोलते हैं अपने बुक में, जो एक पेशेंट आया वो बोला जो हमको सुइसाइड करने का इच्छा कर रहा है, आई विल डू सुइसाइड, आई एम गोइंग टू डू सुइसाइड, ऐसा वो बोल रहे थे अपने डॉक्टर फिलिप बेली के चेंबर में। तो डॉक्टर बेली ने उनको ऑरम मेटालिकम 10 प्रिस्क्राइब किया और इसके बाद पेशेंट कंप्लीट रिकवरी हो गया। सिर्फ ऑरम मेट नहीं, डिप्रेशन में और भी मेडिसिन है। वन ऑफ देम इज एंटीम क्रूड। एंटीम क्रूड में क्या है, एक पेशेंट बोलता है जो हमको ड्रॉनिंग, मतलब हम पानी में कूद कर अपना जान दे देंगे, यदि इस तरह का सिम्टम्स है ड्रॉनिंग, तब आप एंटीम क्रूड के बारे में सोच सकते हैं। पर इसमें रेड सिम्टम्स ये है, जो वहां पर रेड लाइन सिम्टम्स ये है, मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑफ द टंग होना होगा। थर्ड मेडिसिन विच इज वेरी मच indicated is natrum muriaticum. Natrum muriaticum में बहुत सारा shades हैं. You have to understand each and every shades. Whenever you read large number of books, you will find the different shades of natrum is being described by different doctors. One type of natrum mur is timid, and he keeps his whatever happens to him or his grief inside. He is an introvert person. इस तरह का बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने अंदर ही अपना दुख को छुपा के रखते हैं और उनको कोई कंसोलेशन करता है या समझाता है तो गुस्सा जाते हैं। तो ये नैट्रम म्यूर में क्या होता है, मेनली नैट्रम म्यूर का भी पैथोलॉजी बच्चे में ही शुरू होता है। बच्चे में ही शुरू होता है। क्या होता है वहां पर, क्या होता है, जो पेशेंट को जो लव मिलना चाहिए अपने पेरेंट्स से वहां पर नहीं मिलता है। अदर पेशेंट्स झगड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या पेरेंट्स का जो लव मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर बच्चे को वो नहीं मिलता है। तो अंदर ही अंदर उस अपना दुख को छुपाता है, अंदर ही अंदर अपने को रखता है। या बहुत समय ऐसा होता है जो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चे को ऊपर अपना जो फैसला है वो थोप देते हैं, बच्चे को नहीं पूछते हैं जो आपको क्या करना है, नहीं करना है, या क्या होना है, नहीं होना है। वो क्या करते हैं, बच्चे को जैसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिए या कुछ किए, इस तरह का जो हरकत होता है उससे क्या होता है, बच्चे में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का भाव होता है और बच्चा रिबेलियस हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बात पे बच्चे को डांटना, मारना, उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट करना, ये सब से क्या होता है, नैट्रम म्यूरेटिकम का सिम्टम्स बच्चे में पनपता है। एक केस है ओसीडी का जिसको मैंने ट्रीटमेंट किया विथ नैट्रम म्यूर। एक जेंटलमैन, वो एक अच्छे जगह में, एक सरकारी ऑफिस में वो काम करते थे, वो मेरे पास आए, वो बोले जो हमको ऐसा महसूस होता है जब भी हम रोड में निकलते हैं, इवन घर में भी हमको ऐसा महसूस होता है जो डॉग्स हमको बाइट कर देगा, हमको ऐसा महसूस होता है जो डॉग हमको बाइट कर देगा, हमको कुत्ता काट लेगा, हमको बहुत ज्यादा डर लगता है कुत्ता से। पर वो नॉर्मल है, ऐसे देखने में कोई नहीं है, इज वेल ड्रेस्ड एवरीथिंग, पर बार बार ये थॉट आता है जो हमको कुत्ता काट लेगा, बार बार ये लगता है जो कुत्ता हमको काट लेगा, इसके कारण मुझे बहुत एंजाइटी होता है। तो ही वेंट टू CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, और वहां पर उसको ट्रीटमेंट चल रहा था, एंड दे प्रिस्क्राइब्ड लार्ज नंबर ऑफ ड्रग्स एंड देयर वाज सम रिलीफ, उससे कुछ रिलीफ उनको हुआ। बट द पेशेंट केम बैक और वो बोले जो हमको पूरा रिलीफ नहीं मिल रहा है। आई गेव सम मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल आई गेव बेलेडोना, फियर ऑफ डॉग्स, आप यदि देखिएगा केंट में। उसके बाद आई गेव स्ट्रामोनियम, आई गेव ट्यूबरकुलिनम, बट देयर वाज नो गुड रिजल्ट। मैंने एक के बाद एक मेडिसिन देते रहा पर कोई रिलीफ नहीं हुआ। एक दिन पेशेंट आया, देन आई स्टार्टेड आस्किंग, प्रीवियसली ऑल्सो आई हैव आस्क्ड, बट व्हेन द पेशेंट विजिटेड सेवरल टाइम्स, जब बहुत बार हो गया, बहुत बार वो मेरे क्लिनिक में आया, तब आस्ते आस्ते पेशेंट स्टार्टेड ओपनिंग अप। One day he told that when he was young, he was abused by his mother. His mother used to beat him and also scold him because there was a strained relationship between his mother and grandmother.
मदर और ग्रैंड मदर के बीच में बहुत ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप था, और चूंकि ग्रैंड मदर उसको बहुत ज्यादा मानती थी, तो कुछ छोटा भी गलती ये बच्चा करता था तो उसकी मदर उसको बहुत ज्यादा डांटती थी। और जैसे बच्चा घर से बाहर से आया, स्कूल से आया, दूसरे बच्चे लोग को मम्मी खाना दी, उनको उसको भी खाना दी, तो मम्मी फिर ये नहीं पूछती थी बाबू तुमको खाना चाहिए और कुछ चाहिए। दूसरे बच्चे लोग को लाड प्यार से खिलाती थी, उसको कुछ नहीं पूछती थी। उसको उनकी दादी ही ज्यादा मानती थी, और दादी के साथ क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लड़ाई था उनकी मदर को, मदर उनको नेग्लेक्ट करती थी। तो ये जो नेग्लेक्ट करने का जो भाव था ये उनके अंदर में बहुत ज्यादा था, और वो बहुत बोले "हाँ, आज भी मेरे अंदर में बहुत ज्यादा दुख है जो मुझे मेरे माँ का प्यार नहीं मिला"। एंड ही स्टार्टेड वीपिंग। ऑन दिस पर्टिकुलर सिम्टम्स आई प्रिस्क्राइब नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर देने के बाद पेशेंट बहुत अच्छा है। तो इसलिए आपको जानना होगा, बाहर से देख के आप पेशेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। बाहर से देख के आपको सारा सिम्टम्स लग सकता है नॉर्मल है, वो आके 1 या 2 सिम्टम्स देंगे। हाँ, हमको बहुत ज्यादा लगता है, बहुत एंजाइटी होता है, जो हाँ मेरा हाथ बहुत गंदा है, या मुझे बहुत फियर लगता है डॉग से, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स देंगे। पर जब आप उसको बार बार पूछिएगा तो उनके चाइल्डहुड हिस्ट्री या कुछ में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स आपको निकल के आएगा, और इसको वहां से आपको समझ में आएगा जो ये बेसिकली क्या केस है। और उसके बेसिस पे जब आप प्रिस्क्रिप्शन कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप सिलेक्शन कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्शन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्शन के लिए मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मोडालिटीज और कॉन्कोमिटेंट्स का बहुत जरूरी है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं केस ऑफ डिप्रेशन। एक डिप्रेशन के केस जिसको मैंने लाइकोपोडियम सिलेक्ट किया, जिसके बेसिस मेरे एक फ्रेंड थे, ही वॉज माई कलीग ऑल्सो, और वो डिप्रेशन से ग्रस्त थी। और ऐसा था जो ही वॉज माई फ्रेंड एंड मेरे कलीग भी थे, उनको ये था जो वो शाम होने के बाद होल डे ही वॉज वेरी नाइस, बट इन द इवनिंग ही वुड स्टे इन एन आइसोलेटेड रूम। शाम को क्या होता था, वो अपने रूम में अलग से रहते थे इवनिंग टाइम से, और किन्हीं से बातचीत करना नहीं पसंद करते थे। One day he told me that he was suffering from depression. He has some symptoms of depression. When I cross-questioned that why he want to stay alone in the evening, he told that I don't feel good in the evening time. हमने उनको पूछा जो मॉर्निंग टाइम में आप ठीक रहते हैं, तो बोले हाँ मॉर्निंग टाइम में हम ठीक रहते हैं, इवनिंग टाइम जनरली 4 to 8 9 तक हमको अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है मैं अकेले रहूं, मैं किसी से बात ना करूं। इसके बाद मैंने और भी सारा सिम्टम्स लिया, और इसके बेसिस पे मैंने लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया। लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करने के बाद पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और पेशेंट में बहुत जल्दी रिकवरी हुआ। बट पेशेंट कुछ महीनों के बाद फिर रिलैप्स किया। देन आई टूक द होल हिस्ट्री वंस अगेन, एंड आई फाउंड दैट हिज मदर वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। उनकी मदर को ट्यूबरकुलोसिस था। On that basis and other symptoms of tuberculinum, I prescribed tuberculinum at higher potency। और इससे क्या हुआ, उन कंप्लीट क्योर हो गया। तो जब भी आप कोई साइकेट्रिक केस को देखते हैं तो वहां पर आप स्पेशली कोशिश कीजिए जो उसका मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मोडालिटीज के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, उसके बेसिस ही कोई मेडिसिन को सिलेक्शन कीजिए। तो ऐसा बहुत असंख्य केस है। अभी रिसेंट में एक केस सिजोफ्रेनिया का विच वाज बेनिफिटेड बाय होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन। इसमें क्या है, ग्रीफ था साइकोपैथोलॉजी में। इसमें क्या था, दैट लेडी वाज वाइफ ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, एंड शी एक्चुअली हर डॉटर, देयर वाज एन एक्सीडेंट इन द हाउस एंड हर डॉटर डाइड। घर में एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनकी डॉटर का डेथ हो गया था। आफ्टर दैट द पेशेंट बिकेम quiet, she didn't talk to anybody, she was consulted, many doctors were consulted all over India, and she used to sit dumb and she will not talk to anybody। किसी से बात नहीं करती थी, चुपचाप बैठे रहती थी घंटों भर, नहीं नहाती थी, लैट्रिन बाथरूम जो भी है, स्टूल और यूरिन, she would pass involuntary stool and urine। ये सब सिम्टम्स था, एंड देयर फैमिली members were very much annoyed, and they were not annoyed but they were very much, what can I say, बहुत परेशान थी। और they consulted me because she refused to take all allopathic drugs।
बहुत दिनों तक बहुत दवा खिलाया, पर बाद में उन्होंने एलोपैथिक ड्रग्स लेना बंद कर दिया। On the basis of all these symptoms, I gave Ignatia Tenem. Patient party reported that there was no improvement. Again, I prescribed Ignatia Tenem. उससे भी कुछ improvement नहीं हुआ. Then I prescribed Natramute CM in CM potency. अभी कुछ दिन पहले वो पेशेंट पार्टी आए थे. Her husband visited my clinic and he told happily that there was about 30 to 40% improvement. I asked, what was the improvement? He told that nowadays she is gossiping with her daughter-in-law. आजकल वो अपने daughter-in-law से बातचीत करती है, अपने बाथरूम टॉयलेट इधर उधर पास नहीं करती है, वो अपने बाथरूम टॉयलेट अपने से जाके बाथरूम में पास करती है, कपड़ा अपना बदल लेती है, भूख लगने से खाना मांगती है। तो ये सब सिम्टम्स था, ये सब इंप्रूवमेंट था। तो आप देख सकते हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है, पर उसके लिए आपको बहुत अच्छा नॉलेज ऑफ साइकेट्री होना चाहिए। यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स लाइक ऑक्सफोर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री, शॉर्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री बाय नीरज आहूजा, फिलिप बेली का साइकेट्री का बुक है, उसके बाद जॉर्ज विटोल्कस के बुक्स, डॉक्टर जेम्स टायलर केंट, ये सब सारा पढ़ने पर आपको जो समझ में आएगा उसके बेसिस पे ही फिर आपको एक रास्ता मिल सकता है। पर आपको जानना होगा कैसे करके साइकेट्रिक इलनेस किस तरह का होते हैं, कितना प्रकार के होते हैं। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ए केस ऑफ डिमेंशिया ट्रीटेड बाय होम्योपैथिक मेडिसिन। A case of dementia came to my chamber. She was treated in most prestigious institutes of our country and they told that there was no medicine for this case. वो patient आई and she was doing like this, like this, like this, and she was doing like this, like this, like this. On the basis of all this, I prescribed Calibrom and there was a very astonishing and good results. So we can see that why mental symptoms are so much important in prescription in any case. It might be depression, it might be OCD or any other case such as dementia and all. Now I am going to discuss about ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. जनरली बच्चे लोग में आप ADHD के केसेस दिखाई पड़ते हैं। बच्चे लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव, सॉरी, बच्चे लोग बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, इधर उधर के सामान तोड़ते रहते हैं, कभी क्या करते हैं, हाथ हिला रहे हैं तो हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं तो हिला रहे हैं, और इम्पल्सिव भी होते हैं। तो ये सब में भी मैंने बहुत सारे मेडिसिन मैंने प्रिस्क्राइब किया एंड आई फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स इन दिस केसेस ऑल्सो। In case of ADHD, we can use Camomilla, Antimcrude, Tarantula hispana, Tuberculinum, Phosphorus, etc. on the basis of totality of symptoms. अभी ये समय नहीं है जो हर एक इंडिविजुअल को डिस्कस कर सके इतना डिटेल में, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। If I am going to discuss about ADHD, it would take a separate session. एक separate session जरूरत है सिर्फ ADHD को डिस्कस करने के लिए या पर्टिकुलर मेडिसिन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ADHD में मेनली जो ड्रग्स मैंने यूज किया वो ये सब है। इसके अलावा बहुत सारे और भी केसेस में, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आए जिन लोग को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, जिन लोग को नींद नहीं आते हैं रात को, वो सब केसेस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ला सकता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। अगेन आई एम कमिंग टू द फील्ड ऑफ डी एडिक्शन। जो लोग नशा करते हैं उन लोग के केस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन कुड प्रूव वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज कैलेडियम और जो कैलेडियम आप यूज कर सकते हैं जिन लोग बहुत ज्यादा खैनी या तंबाकू का यूज करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो कैलेडियम से इनटेक ऑफ टोबैको कैन कॉज कैंसर, तो ये सब केसेस में आप कैलेडियम यूज कर सकते हैं। कैलेडियम को कुछ दिन तक यूज करना पड़ेगा, तब ऐसे क्या होगा, उसको एवर्शन टू टोबैको, मतलब उसको टोबैको का कोई चीज लेने का इच्छा नहीं होगा। फॉर अल्कोहल के लिए आप बहुत सारे मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड सल्फ्यूरिक इज देयर, यू कैन यूज एसिड सल्फ्यूरिक फॉर द पर्सन हु आर एडिक्टेड टू
take, who are habituated to take alcohol regularly, उनको उनका आदत छुड़ाने के लिए आप एसिड सल्फ्यूरिक यूज कर सकते हैं, सिफिलिनम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारा सल्फर यूज कर सकते हैं, क्वेरकस रोबर यूज कर सकते हैं। ये सब कोई भी मेडिसिन आप जब यूज करते हैं तब आप देखिए उसका मेंटल सिम्टम्स, उसका फिजिकल सिम्टम्स, उसका मॉडलिटी सब मैच कर रहा है कि नहीं। यदि मैच नहीं कर रहा है तब आप उस मेडिसिन को मत यूज कीजिए। सिंपली जो ये एडिक्शन के लिए यूज होता है, नक्स भूमिका यूज कर सकते हैं, पर जो भी मेडिसिन आप सिलेक्शन करते हैं उसका बेसिस होना चाहिए मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, मॉडलिटीज। स्पेशली इन केस ऑफ मेंटल केसेस वहां पर आपको फिजिकल सिम्टम्स को बहुत अच्छा से जानना होगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दूसरा ड्रग के साथ, दूसरा जो सिमिलर मेडिसिन है। फॉर एग्जाम्पल इन केसेस ऑफ डिप्रेशन, यदि डिप्रेशन का केसेस है तो वहां पर आपको ये देखना होगा जो उसका मॉडलिटी, यदि मॉर्निंग टाइम का मॉडलिटी है 10-11 बजे से उसको बहुत ज्यादा मन खराब लगता है एंड ही इज मच इरिटेटेड एंड ऑल दोस, देयर इज मार्क्ड एग्रावेशन एट 10 to 11 AM, then you can think of natrum muriaticum. But if it is evening aggravation, you should always think of lycopodium. And if it is night aggravation, रात को यदि aggravation है, पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, पेशेंट को बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस है, सुइसाइडल डिजायर है, यू कैन थिंक ऑफ आर्सेनिकम एल्बम। बहुत सारे बुक में आर्सेनिकम एल्बम के बारे में भी दिया हुआ है, जो एंजाइटी डिप्रेशन में आप आर्सेनिकम एल्बम को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा है पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर्स। पैनिक अटैक एंड पैनिक डिसऑर्डर्स में भी बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई मेडिसिन यूज करते हैं पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर के लिए, एक्यूट सिम्टम्स को सबड्यू करने के लिए कुछ मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एकोनाइट, या उस समय जो पर्टिकुलर सिम्टम्स रहता है उसको वो सबको सबड्यू करने के लिए आप एकोनाइट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक्यूट मेडिसिन जिसका सिम्टम्स वो प्रेजेंट कर रहा है उसको आप यूज कर सकते हैं। पर फॉर कंप्लीट क्योर यू हैव टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सच एज कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नेट्रम म्यूट, सल्फर एक्सेट्रा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये सब मेडिसिन को आपको खोजना पड़ेगा, इसके बेसिस पे आप फिर आपको देना पड़ेगा ताकि उनको उसमें पेशेंट में कंप्लीट क्योर हो। I hope this session proved to be useful to all the fellow doctors and my junior doctors. Thanks to all for joining. I would like to say sorry to all of you. I was planning to come on YouTube live, but due to some connection issues, I have to come on Facebook. Thank you. Thanks a lot for watching.